میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج کا جو کلام ہے وہ بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر ہے، خداوند کا ازلی ارادہ اور یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کا مقصد، اور ابلیس کو، جس کو ہم شیطان بھی بولتے ہیں، اس کو آسمانوں سے کب گرایا گیا۔ تو آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، تو میرے خیال سے سب لوگ دیانتداری سے اور ایمانداری سے سنیں گے تو ہم سب برکت پائیں گے۔ آسمانی باپ ہم سب کو یہ کلام سننے، سمجھنے کی توفیق دے اور دوسروں تک پہنچانے کا شرف بخشے۔ تو آئیں ہم اس کلام کو سنیں اور برکت پائیں۔ جے مسیح جی۔ مسیح خداوند کے پاک نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہاللیلویہ۔ آج کے دن کے لیے جو خدا نے ہم سب کو دیا، پھر اچھی گواہیوں کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ ہم اپنے خدا کو چومتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جس نے ہمیں بورے میں پڑے نہیں رہنے دیا، اٹھا کھڑا کیا۔ اس نے ہمیں بلایا ہے اپنی بادشاہت کے لیے۔ وہ وقت آنے والا ہے، یسوع آئے گا، ہم اس کے ساتھ ہوں گے پوری دنیا پر بادشاہی کرنے کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ 1000 سال اسی طرح اس دنیا پر بادشاہی کریں گے، اور اس کے بعد ہمیشہ تک جہاں یسوع ہوگا وہاں رہیں گے۔ اسی لیے یسوع دنیا میں آئے۔ ہاللیلویہ۔ ان نوجوانوں کے لیے ہم خدا سے برکت چاہتے ہیں۔ خدا یوں ہی اپنا ہاتھ بڑھائے۔ ایوری ہوم ادارے میں گیا، وہاں میں نے میسج بھی دیا تھا۔ ان کے عزیز بھائی شہزاد یہاں میسج دے کر گئے، اور میں نے یسوع خدا کا بیٹا، وہاں میں نے میسج بھی دیا، بڑی عزت دی۔ خدا برکت دے، نوجوانوں کو یوں ہی بڑھتے جائیں اور خدا برکت دے۔ اسی طرح کیمپس کے ساتھ ہم نے بہت کام کیا۔ کیمپس کے ساتھ جب پادری زہرالدین ان کی وائف تھی، ہم بہت ان کے ساتھ مل کر ہم نے خدمت کی۔ OM ٹیم کے ساتھ میں نے بہت کام کیا۔ سن 90 میں، آج سے 34 سال 33 سال پہلے، میں نے غیر قوموں میں منادی OM ٹیم کے وسیلہ سیکھی تھی۔ میں اس کو کہتا رہتا تھا، اپنے دوست کو، شاہد وارث صاحب تھے، تو میں کہتا تھا بھائی یہ بہت مشکل خدمت ہے جو آپ کرتے ہیں، ڈور ٹو ڈور، ہر گھر میں، اور پھر کلام سنانا، ان کو باتیں بتانی۔ تو اکثر اس کو مار پڑتی تھی۔ ایک دن مار کھا کے آیا، کہنے لگا آج میں بڑا خوش ہوں۔ تو میں نے کہا مجھے بھی یاد یہ طریقہ سیکھا۔ اس نے کہا چلو، مجھے ساتھ لے گیا۔ یہ سن 90 کی بات ہے، 33 سال پہلے۔ میں صدر سے پمفلیٹ لے کر 11 سی بس میں بیٹھا، اور میں نے بانٹنے شروع کیے۔ ایسے ہی نہیں لوگوں کو دیے۔ پہلے میں نے پوچھا آپ یسوع کو جانتے ہیں؟ بولا نہیں۔ جاننا چاہتے ہیں؟ یہ لو، مفت ہے۔ تو یوں میں بانٹنے شروع کی۔ بس یہ جناح تک میری ٹانگیں کامتی تھی، پھر میں سنبھل گیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ شروع میں مشکل ہوتی ہے، اور اب میں نے کئی بار مسجدوں میں بیٹھ کر 5 دن ڈبیٹ کیے۔ ہاللیلویہ۔ یہ خدا کا فضل ہے۔ یہ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں جہاں یہ بہتوں کو تیار کر رہے ہیں، وہاں یہ بہتوں کو یسوع کی بادشاہت میں لے کر جائیں۔ میں چاہوں گا پھر ان نوجوانوں کی بہادری کے لیے، دلیری کے لیے، اس کام کے لیے زوردار تعریف۔ ابھی میں کوئی 6 مہینے بعد اس طرح کا میسج دینے لگا ہوں۔ میں اپنے ساتھیوں کو کہتا رہتا ہوں میسج بدلا کرے، ترتیب بدلا کرے، کبھی معجزوں پہ، کبھی یسوع کے جلال کے لیے، کبھی پرانے عہد میں، اور کبھی کبھی مضمون بھی بیان کیا۔ آج مضمون ہے تو جلدی سے جو لوگ پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، وہ تو اپنی ڈائریاں اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ مضمون بڑا خشک ہے، ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی بھی ملے گا تاکہ وہ ہضم ہوتا جائے۔ ہاللیلویہ۔ تو ایسا بھی ہونا چاہیے، کبھی کبھی مضمون ہونے چاہیے۔ تو آج ہمارا مضمون ہے یسوع دنیا میں کیوں آیا۔ ہاللیلویہ۔ یسوع دنیا میں کیوں آیا، اور آج ہم یہ مہینہ شروع ہو گیا کرسمس کا، اور ہم یسوع کی
पैदाइश के दिन को मनाने वाले हैं कि यीशु दुनिया में आया, हमें खुशियां लाया, उसने हमें खुशियां दी। उनमें जो बड़ी खुशी है आज मैं उसका जिक्र करूंगा, मगर ये तालीमी मैसेज है, सुने, तवज्जो कीजिएगा, पूरे ध्यान से सुनिएगा। यीशु दुनिया में क्यों आया? जब खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया और फिर खुदा ने जमीन आसमान बनाने से पहले खुदा जिस मकाम पर आज है उस वक्त भी वही था। खुदा आसमान में नहीं है, खुदा आसमानों से बुलंद है। यही लिखा है ना, वो सब आसमानों से बुलंद किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। कौन? यीशु। जब वो जी उठा तो फिर खुदा आसमान में नहीं है, खुदा आसमानों से बुलंद है, इतना बुलंद हमारी सोच से ज्यादा। जिस तरह खुदा को जानना हमारी सोच से बालातर है, जब तक हम खुदा को जानने के लिए खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं होंगे, हम खुदा को नहीं जान सकते। थोड़े वक्त में मुझे बहुत कुछ बोलना है, तो जरा तवज्जो मेरे अंदर रहे। लाइट की कोई परवाह नहीं, इन चीजों पर तवज्जो ना दे और थोड़ी सी तवज्जो कलाम की तरफ दी। खुदा को जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में बार बार कहा है, यीशु ने कहा मेरे सिवा कोई बाप को। अच्छा, ये भी काम थोड़ा सा करें, जिस आयत का पता होता है आगे बोले और जोर से बोलिएगा। और मेरी ये आदत में शामिल है, मैं थोड़ी सी आयत छोड़ता हूं ताकि आगे आप बढ़ाएं। ठीक है जी? तो यीशु मसीह दुनिया में आया, क्यों आया, आज हम ये सीखेंगे। और यीशु ने कहा मेरे सिवा कोई बाप को, और वो जिस पर मैं जाहिर करूं वो बाप को जानेगा। यानी यीशु ने कहा मेरे सिवा कोई नहीं जानता, और जिस पर मैं चाहूं बाप को जाहिर करूं वो बाप को जानेगा। जब हम यिर्मयाह की किताब और उसका नामा बाप 23 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, न साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, न कवि अपनी कुव्वत पर, और न मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करता है तो वो इस बात पर फख्र करे वो समझता और मुझे, और वो समझता और मुझे खुदा को जानना नहायत जरूरी है। हम जब वहां जाने के लिए बादशाहत में दाखिल होने के लिए जाएंगे तो यीशु ने क्या कहा? यीशु कहते हैं मैं कह दूंगा मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं, क्योंकि तुमने मुझे जाना ही नहीं, तुम मुझे समझे नहीं। अब जानेंगे तो फिर हम पता चलेगा, और जानने का तरीका एक ही है, हम यीशु के कदमों में आए, उससे मांगे, उससे अकल मांगे, उससे मैसेज मांगे, उससे सोच मांगे, वो हमें देगा। ये यीशु का वादा। यीशु क्यों दुनिया में आया? आसमान पर इबादत होती थी, फरिश्ते रात दिन खुदा की इबादत करते थे, और बड़ा अच्छा निजाम आसमान से ऊपर बुलंदियों पर चल रहा था। उस वक्त ना जमीन थी, ना आसमान था, ना गराव थे, ना पानी था, ना पहाड़ थे, कुछ भी नहीं था। वहां एक काम हुआ और उसको कहते हैं पहला गुनाह। पहला गुनाह खुदा की हजूरी में हुआ, और वो किसने किया? किसने किया? और लूसीफर ने। और लूसीफर के नाम के मैंने पता क्या है? सुबह का चमकता, रोशन चमकता हुआ सितारा। और हिजकिय्याह की किताब 28 बाब जब आप पढ़ेंगे, और इसी लूसीफर के बारे में बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब आप हिजकिय्याह पढ़ेंगे वहां लिखा है जब वो अपने परों को हिलाता था साल बजते थे। उस पर खुदा ने नगीनागिरी की थी, खुदा ने उसे सब फरिश्तों से खूबसूरत बनाया था, और उसे एक डिपार्ट दिया था, एक अदारा दिया था, और वो कौन सा था? बोले बोले, परस्तिश का। कौन सा अदारा था? परस्तिश का। ये डिपार्ट लूसीफर के पास था।
लूसीफर साज बजाता था। कितने साल? तमाम साल। उसके परों में जब वो ऐसे हिलाता था साल बजते थे और फरिश्ते कदूस 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 कहते। और आसमान पर एक समा होता, आसमानों से बुलंद। अब वो मुंह से बार बार आसमान निकलेगा, कहीं मैं कह दूं तो बुरा ना मनाइए कि मैंने खुद तो कहा, आसमान में नहीं बल्कि बुलंद। खुदा के बारे में खबर है कि वो आसमान पर है, वो बना हुआ है ना, मगर खुदा आसमान में नहीं है, ना आसमान के ऊपर है, बल्कि बहुत बुलंद है। रात दिन प्रस्तुत होती थी और खुदा मसरूर होता था और खुदा मगन था, खुदा की इबादत होती थी और कदूसी कदूस कदूस करते, साथ बजाने वाले साथ बजाते, यूं हर अपने काम को लगा हुआ था। एक दिन लूसीफर के जहन में फतूर आया, गुरूर आया, तकब्बर आया, मुझसे मुझ जैसा खूबसूरत इन फरिश्तों में कोई नहीं। पता क्या लिखा है वहां? जब तक उसमें नाराजगी ना पाई गई, खुदा हर रोज उसमें नया काम करता था, उसके पर ठीक करता था, कोई और खूबसूरत चीज उसमें लगा देता था, खुदा उसे बनाता रहा खूबसूरत से खूबसूरत। करोड़ों अरबों खरबों मेरी गिनती खत्म हो जाती है, इतने साल खुदा ने उस फरिश्ते पे काम किया। बाइबल में लिखा है, इसकी 28 बाब पढ़ के देखिएगा। किसी चीज को कोई 2 महीने बनाए ना लगा के, वो फख्र करता है, भाई मैंने इसके ऊपर 2 महीने काम किया। और खुदा ने खरबों अरबों अनगिनत साल लिखा है कि जब तक उसमें नाराजगी कहते हैं गुनाह को, उसमें जब तक गुनाह ना पाया गया, खुदा उसे हर रोज बनाता रहा, खूबसूरत करता रहा। इसीलिए तो गरूर आ गया, तकब्बर आ गया, मैं तख्त अलग बनाऊंगा, मेरा तख्त अलग होगा और मैं तख्त पर बैठूंगा, फरिश्ते मेरी इबादत करेंगे, ये सब मेरे मुतहद हैं। खुदा को कौन जानता है? फिर मेरे पास अख्तियार, लूसीफर के पास बहुत अख्तियार था जो अभी तक नहीं लिया वापस, अभी तक वापस वो अख्तियार नहीं लिया। इतना अख्तियार था उसके पास, गुरूर आया, तकब्बर आया और खुदा दिलों को जानता है। लूसीफर नहीं जानता था कि खुदा मुझे जानता है मेरे दिल को, मगर खुदा उसके बारे में जानता था कि इसके अंदर बुराई आ गई है और खुदा ने उसे करने दिया वो जो करना चाहता है। और पता उसने कितने फरिश्ते अपने साथ मिला लिए? जब आप मुकाशफा 12 बाब और पहली 3-4 आयत पढ़ेंगे, मुकाशफा 12 बाब पहली 3-4 आयत, तो वहां क्या लिखा है? वहां लिखा है लूसीफर को जब गिराया गया, अकेला नहीं गिरा, उसने तिहाई सितारे जमीन पर गिरा लिए, यानी तिहाई फरिश्ते। तिहाई का मतलब 30%, 100 में से 30, 10 में से 30% उसने अपने साथ जमीन पर गिरा लिए। फिर भी वो एक बड़ी फौज लेकर उतर आया। यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? जब इब्लीस ने गुरूर किया, तकब्बर किया, तब खुदा के अंदर एक इरादा हुआ। तब खुदा ने सोचा, एक इरादा किया। इसे हम बाइबल की जुबान में कहते हैं खुदा का अज़ली इरादा। यह है खुदा का अज़ली इरादा। और वो अज़ली इरादा क्या था? वो अज़ली इरादा ये था, खुदा ने कहा मैं एक ऐसा इंसान बनाऊंगा जो मिट्टी का होगा, वो इसे शिकस्त देगा। क्यों? खुदा खुद क्यों नहीं शिकस्त उसे देता? खुदा को चाहिए तो उसको मार के निकाल देना। बहुत सारे लोग कहते हैं खुदा ने इब्लीस हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दिया, खुदा ने खत्म क्यों नहीं किया? खत्म कर देता तो हम मुश्किल में ना। ये ख्याल बहुत सारे दिनों में आता। खुदा ने उसे नहीं खत्म किया। क्यों? ये खुदा की शान के खिलाफ है। खुदा मखलूक से लड़े ये बनता नहीं। और इब्लीस भी जानता था कि खुदा मुझे कभी अपने हाथ से नहीं मारेगा।
اور کبھی مجھ سے نہیں لڑے گا کیونکہ یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے خدا نے ارادہ کیا میں ایک انسان بناؤں گا اور جب وہ اس کو کچلے گا، اس کے سر کو کچلے گا، تب یہ جانے گا کہ خدا قدرت والا ہے اور خدا مٹی سے بھی بڑا کام دینا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ پھر خدا نے کیا کیا؟ یسوع کو دنیا میں بھیجنے کے لیے آدم اور حوا کو بنایا تاکہ اس کی نسل سے یسوع کو پیدا کیا جائے۔ اس لیے جب آپ یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی چند آیات پڑھتے ہیں اور پھر یوحنا کا پہلا خط اس کی پہلی چند آیات پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے سب کچھ اس نے پیدا کیا، اسی کے لیے پیدا ہوا، یعنی سب کچھ یسوع نے پیدا کیا، یسوع کے لیے پیدا ہوا۔ یہ بڑا مشکل جملہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع کون ہے؟ یسوع خدا کا کلمہ ہے۔ دراصل وہ خدا کے اندر تھا۔ خدا نے اپنے کلمے کے بارے میں کہا اسے میں مٹی کا بدن دوں گا۔ کلمہ نادیدنی قوت تھا، خدا کا روح نادیدنی قوت تھا۔ نادیدنی کا مطلب نہ نظر آنے والی، مگر خدا وجود رکھتا ہے۔ وہ اسی لیے تو تخت پر بیٹھتا اور عبادت کرواتا ہے، مگر خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ آج تک خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اس لیے یوحنا کی انجیل پہلا باب 18 آیت میں لکھا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا یسوع مسیح دنیا میں آیا اور وہی خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا ہے۔ اور اس لیے یسوع دنیا میں آیا اور خدا کا روح بن کر آیا۔ یوحنا کی انجیل 14 باب 7ویں 8ویں آیت پڑھے۔ فلپس نے یسوع سے کہا اے استاد تو ہر روز ہمیں باپ کی باتیں بتاتا ہے، ہمیں باپ سے ملا، مجھے اپنا باپ دکھا۔ یسوع نے کیا کہا؟ فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے درمیان ہوں اور تو اب بھی کہتا ہے باپ کو مجھے دکھا۔ اور جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایک بات میں بیچ میں ذرا بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ بیٹے بیٹیاں جو لکھ رہے ہیں اور جو خدمت میں ہیں، سنیں یسوع خدا کا بیٹا کس طرح ہے، یسوع خدا کس طرح ہے۔ تو اگر 2 جملوں میں بیان کرنا چاہیں تو سنیں۔ اس کے لیے میں آپ کو کلیہ دیتا ہوں۔ میں انسان ہوں، میرا روح ہے، خدا خالق ہے، اس کا روح ہے، فرشتے ہیں، ان کا بدن آگ کا ہے، جلالی ہے، ان کے اندر روح ہے۔ جو میری شکل ہے وہی میرے روح کی شکل ہے، جو خدا کی شکل ہے وہی خدا کے روح کی شکل ہے، جو میری شکل ہے وہی میرے کلمے کی شکل ہے جو میرے دل میں ہے، جو خدا کی شکل ہے وہی اس کے کلمے کی شکل ہے، جو فرشتے کی شکل ہے وہی فرشتے کے روح کی شکل ہے۔ تو کیا کہا یسوع نے؟ یسوع نے فلپس سے کہا اے فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے درمیان ہوں، تو اب بھی کہتا ہے مجھے باپ کو دکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اب اس کو لیے تو سمجھیے کیا ہے، یسوع کون ہے؟ خدا کا کلمہ وجود لے کر دنیا میں آیا ہے۔ تو جو میری شکل ہے وہی میرے کلمے کی شکل ہے، جو خدا کی شکل ہے وہی خدا کے کلمے کی شکل ہے۔ یسوع کی شکل اور خدا کی شکل 2 نہیں بلکہ ایک ہے۔ یہی تو یسوع کہہ رہا ہے جب میں کلمہ ہوں تو میری شکل خدا کی شکل ہے۔ جس نے خدا کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، اور جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ زوردار تالیاں وہ خدا انسان بن کر دنیا میں آیا۔ آئے ابھی بڑے وید کی طرف میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، ایک بہت بڑا جملہ ہے جو لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں، اس پہ بڑا اختلاف ہے۔ ابلیس کو کب زمین پر گرایا گیا؟ کہتے ہیں جب وہ ماں حوا اور ہمارے باپ آدم کو مرگ لگانے کے لیے آیا، اس کے بعد خدا نے اس کو زمین پر سے سامان کو اپنے تخت سے گرا دیا، پھر آ کے اس نے مرگ لگایا۔ ہرگز نہیں۔ سنیں یہ تعلیم غلط ہے کہ وہ کس طرح سنیں۔ مکاشفہ 12 باب میں لکھا ہے، 12 باب کی 7ویں آیت، پھر آسمان پر بڑی لڑائی ہوئی، مائیکائیل فرشتہ
अज़दहा से लड़ने को निकला। अज़दहा के फरिश्ते, इब्लीस के फरिश्ते खुदा के फरिश्तों से लड़े, फिर उन पर आसमान के ऊपर जगह न रही और वो जमीन पर गिरा दिया गया। कौन? वही पुराना अज़दहा, वही पुराना साम जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। किसने गिराया? माइकाइल ने। किसने गिराया? माइकाइल ने। तो फिर यीशु की दुनिया में आने की जरूरत क्या थी? अगर खुदा के पास कोई ऐसा फरिश्ता था माइकाइल, और माइकाइल का मतलब पता है क्या? नाम के मैंने क्या है? कौन खुदा की मानींद है, ये उसका ऐलान है। अगर कोई खुदा होने का दावा करे, माइकाइल उससे जंग करता है, इसलिए उसके नाम के मैनी ये है, कौन खुदा की मानींद है। ये माइकाइल के नाम के मैनी। 12 मुकाशवा 12 बाब में आप पढ़ते, उसने गिरा दिया गया। अगर उसने गिरा दिया फिर यीशु की कोई जरूरत नहीं। क्यों? यीशु वाहिद हस्ती है। बाइबल कहती है जो इब्लीस पर गालिब आया, अगर वो वाहिद हस्ती है तो फिर माइकाइल कौन है? इसी वजह से कुछ ऐसी तंजीमें उठ खड़ी हुई हैं, वो कहते हैं यीशु और माइकाइल दो नहीं एक ही है। माइकाइल इंसान बनकर आया, ये गलत तालीम है। ये कौन देते हैं? यहोवा के गवाह। और ये गलत तालीम है। सही तालीम क्या है? आगे पढ़ लेना, थोड़ा आगे नहीं पढ़ते। जब मुकाशवा 12 बाब की 7 आयत पढ़ते हैं, आगे लिखा है और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस इब्लीस पर गालिब आए। किस तरह गालिब आए? बर्रा के खून। इसका मतलब क्या हुआ? यीशु ने उन्हें अख्तियार दिया। कब दिया? जब सलीब पर अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, उसके बाद उसको गिराया गया। बहुत सारे लोग कहते हैं शुरू में गिरा दिया। शुरू में नहीं गिराया गया। अगर शुरू में गिरा दिया जाता फिर यीशु की आने की कोई जरूरत नहीं। इसके मैं चंद सबूत बयान करता हूं। मैं जो बात सिखा रहा हूं वो ये है, यीशु ने जब सलीब पर अपनी जान दी तब इब्लीस को जाकर फिर यीशु फिर आसमान पर गया और जाकर आसमान से बुलंद खुदा के तख्त से इब्लीस लूसीफर को और उसके फरिश्तों को जमीन पर गिराया। उसका एक बड़ा और सबूत देता हूं आपको। लिखने वाले लिखे, मुकाशवा की किताब एक ऐसी किताब है उसमें से हुई बात नहीं लिखी, जो हो चुकी हो उसमें लिखी हो, कोई ऐसी बात नहीं। इसका सबूत देता हूं। मुकाशवा पहला बाब उसकी पहली आयत और कोई 4 बार ये बात कही गई है। 19वें बाब में भी कही गई है और भी बहुत जगह कही गई। बार बार मुकाशवा में ये बात यीशु ने यूहन्ना को कही। क्या कहा? यूहन्ना आ, मैं तुझे वो बातें दिखाऊं जिनका जल्द होना जरूर है। ये 4 बार मुकाशवा की किताब में यीशु ने कहा। तो इसका क्या मतलब है? जब मुकाशवा की किताब को यूहन्ना को कहा लिख, तो यीशु ने 4 बार ये बात कही, मैं तुझे वो बातें बता रहा हूं जो होने वाली हैं, अभी हुई नहीं। तो फिर मुकाशवा की किताब में अगर ये हदीस को गिरा दिया गया तो फिर क्यों लिखा गया? यीशु ने तो खुद कहा था मुकाशवा की किताब में जो बातें हैं ये होने वाली हैं, हुई नहीं। दो पॉइंट और है। ये साया 14 बाब जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है इब्लीस को गिरा दिया गया, मगर वहां 2 बातें चलती हैं। पूरा जब बाब पढ़ेंगे तू गिरा दिया जाएगा, तू गिरा दिया गया, ये 2 अल्फाज चलते हैं पूरे बाब में। मगर जब शुरू करते हैं 14वें बाब की पहली आयत से तो वहां लिखा है बनी इस्राइल के बारे, याकूब की नस्ल मैं तुझे बरकत दूंगा। और दरअसल याकूब का नाम जो इस्राइल है ये यीशु का नाम था और यीशु का नाम है और यीशु का नाम रहेगा। तो वो बात इस्राइल की हो रही है, वो बात याकूब की हो रही है और वो पेशन गोई है, वो वाकया अभी हुआ नहीं। यसाया 14 बाब पेशन गोई है और यसाया की पूरी किताब पेशन गोइयों से बड़ी है, इसलिए तो उसे आलमों की राय में अंजील है। वो पुराने अहदनामा की क्या है? अंजील है। अंजील का मतलब खुशखबरी और खुशखबरी का मतलब वो बातें जो हमारे लिए खुशी का बाइस। हालेलुया, हालेलुया।
तो जो यसाया ने कहा है वो पेशन गोई है, अभी हुआ थोड़ी था, अबलीस को गिराया थोड़ी था। चले आगे आगे हिजकिय्याह 28 बाब, और जब हिजकिय्याह 28 बाब की 11 आयत से 12 आयत तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा है असूर के बादशाह के बारे में कि तुझे इबरत लेनी चाहिए। किससे? उसको गिरा दिया गया जिस पर नगीनागिरी की गई, जिसके परों में 7 बजते थे, जो खूबसूरत था, जो हिकमत में कमाल था, जो अपनी कुव्वत में कमाल था, और उसको एक और नाम दिया गया साया अफगन। तू तो ममसूक रूबी था, साया अफगन था, खुदाए परदोस में रहा करता था, और तेरे परों से 7 बजते थे। ये सारा कुछ पढ़ना हो तो ये हिजकिय्याह की किताब 28 बाब 11 बाब से 11 आयत से 12 आयत तक पढ़ेंगे तो वहां आपको ये सारी बातें मिलेंगी। अब आएगा कुछ पक्के सबूत आपको जो यीशु ने अपनी जुबानी कहे। पढ़े मेरे साथ। अभी तक मैंने कोई हवाला नहीं पढ़ाया, सिर्फ 3 हवाले पढ़ाऊंगा, बाकी सब जुबानी बोलूंगा। यूहन्ना की इंजील निकालने 12 बाब 27 आयत से 35 आयत तक कोई भी पढ़े। उसके बाद यूहन्ना की इंजील 14 बाब 30 आयत से 31 आयत तक। उसके बाद यूहन्ना की इंजील 16 बाब और 8 आयत से 14 आयत तक। ये सिर्फ 3 बाब आयतें पढ़ेंगे, बाकी मैंने सब दुबानी बयान की, बाकी भी दुबानी बयान करूंगा जी। 12 बाब जोर से बुलंद आवाज से। अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूँ, ऐ बाप मुझे इस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इसी सबब से तू इसी घड़ी को पहुंचा हूँ। ऐ बाप अपने नाम को जलाल दे। पास आसमान से आवाज आई कि मैंने उसको जलाल दिया और फिर भी दूंगा। जो लोग खड़े हैं सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल गिर जा, औरों ने कहा कि फरिश्ता उससे हम कलाम हुआ। यीशु ने जवाब में कहा कि ये आवाज मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है। अब दुनिया की अदालत की जाती है, अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने साथ खींचूंगा। आमीन। इसमें जो खास बातें यीशु कह रहे हैं अपनी सलीबी मंजर को बयान कर रहे हैं। अब वक्त करीब आ गया, मैं सलीब पर दिया जाऊंगा। क्यों दिया जाऊंगा ये यीशु ने वजह बताई, और इसमें जो खास आता है 31 आयत। सुने क्या कहा यीशु ने, अब दुनिया की अदालत की जाती है, अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा। अब दुनिया की अदालत की जाती है। बाइबल सुनने वाले पढ़ने वाले जानते हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने अदालत का सारा काम किसके सुपुर्द किया? अदालत का सारा काम किसके सुपुर्द किया? अपने बेटे के। पूरा जुमला बोले, किसके सुपुर्द किया? अपने बेटे के। बाप किसी की अदालत नहीं करता, क्योंकि उसने अदालत का सारा काम अपने बेटे के सुपुर्द किया है। तो अगर उसको वहां से निकाला जाता फिर तो खुदा अदालत करता। अदालत का तो काम ही उसने अपने बेटे के सुपुर्द किया, अपने कलमे के सुपुर्द किया। तो यीशु ने जब सलीब के तरफ बढ़ना शुरू किया, बताना शुरू किया, अब वक्त आ गया कि मैं सलीब पर चढ़ूंगा, तो जब मैं चढ़ूंगा तो क्या करूंगा? अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा। ये यीशु का बड़ा मिशन था। जिस मिशन को कहा जाता है ना खुदा का असली इरादा, वो दरअसल ये था, मगर रास्ते में बहुत छोटे छोटे काम भी यीशु को करने पड़े ताकि वो जाहिर हो कि खुदा का बेटा है। माँ हवा को कहा गया वो इसके सर को कुचलेगा, बलीस के सर को। फिर बाप इब्राहिम को कहा गया मैं तेरे वसीले दुनिया की सारी कौमों को निजात दूंगा। फिर खुदा ने इसहाक याकूब से कहा और याकूब ने बड़ी जिद की। अब ये 2 भाई थे, याकूब और एसाऊ। याकूब चाहता था वो बरकत मुझे मिले। वो अपने दादा से सुना करते थे, इब्राहिम से, वो अपने बाप से सुना करते थे। इसलिए बाप दादा की बातें याद आई, हमारी नस्ल से एक ऐसा पैदा होगा पूरी दुनिया उससे निजात पाएगी।
अब यकूब तो दीवाना था, वो मेरी नस्ल से पैदा हो, मैं उसे देखूं। वो दीवाना था। फरिश्ते ने कहा तू क्या चाहता है? फरिश्ते ने कहा मुझे छोड़ जाने दे। कहा नहीं, मुझे बरकत दे। कौन सी बरकत मांग रहा था? वो कह रहा था कह दे कि वो मेरी नस्ल से पैदा होगा। हालेलुया। तो इसलिए तो उसने कहा आज से तू कौन है? डरो ना, कोई नहीं तू जानता। दो से तू कौन है? आज से तू कौन है? तेरा नाम पहले यकूब है, आज से तू कौन है? इस्राएल का मतलब समझते क्या? इस्राएल के मैनी क्या है? शहजादा। इस्राएल के मैनी क्या है? वो शहजादा है, वो शहजादे की कौम है। और ये लक़ब यीशु का है। अगर नहीं तो मैका पढ़ के देखिए, मैका की किताब 11वां बाब पढ़ के देखिएगा, वहां लिखा है जब इस्राएल अभी बच्चा ही था मैंने उससे मोहब्बत रखी और मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। यकूब तो बूढ़ा हो गया था, वो बच्चा नहीं था जब आया था। हाँ, जब यीशु बच्चा था मिस्र गया वापस आया तो नबी ने कहा वो बात पूरी हुई, मत्ती ने कहा वो बात पूरी हुई। वो लक़ब जो यकूब को मिला था वो यकूब को सिर्फ लक़ब मिला था, नाम यीशु का है। इस्राएल, इस्राएल किसका नाम है? यीशु का नाम इस्राएल। इस्राएल का मतलब है शहजादा। तो यकूब तो शहजादा नहीं था, उसका बाप तो बादशाह नहीं था। हाँ, यीशु का बाप बादशाह था, इसलिए उसको कहा जाता है शहजादा। वो सुलह का सरदार, सलामती का शहजादा, वो अल्फा ओमेगा, अव्वल आखिर, ये सारे नाम उसी को जचते हैं, उसी के नाम के लिए जाते हैं। हालेलुया। ये सारे नाम उसी को जचते हैं। गैर कौमें हमने कह दिया वो कितने खलोबो भी थे सही, क्या हुआ? कभी के लिए नबी है, कभी के लिए खुदा का बेटा है, कभी के लिए खुदा का खुदा है, कभी के लिए और बड़े नाम ले ले। वो एक आखो की तुहां पागल बनाया सानू। वाकया ही उसको सारे नाम जचते हैं, वो नामों का शहंशाह है, उसको सारे नाम जचते हैं। क्यों? वो इस लायक है हर अच्छा नाम उसी को दिया जाए। हालेलुया। एक आयत और पढ़ ली, दूसरी जो मैंने कही 14वें बाब की 30 आयत से 31 आयत तक। जल्दी पढ़े, वक्त कम, मुकाबला सख्त। इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें न करूंगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, लेकिन ये इसलिए हुआ है कि दुनिया जाने कि मैं बाप से मोहब्बत रखता हूँ और जैसा बाप ने मुझे हुक्म दिया मैं वैसा ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चले। आमीन। यीशु ने यहाँ भी इस बात का इजहार किया कि इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना कहूंगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है। अबलीस को क्या कहा? अबलीस के जो लक़ब है वो दुनिया का खुदा कहा है, उसको दुनिया का सरदार कहा गया है। अब ये दुनिया जो लफ्ज़ है ना, ये जरा इस पे तवज्जो दें, इसके बारे में लोग उलझे रहते हैं। हम अक्सर मैंने ईमानदारों को देखा है कहते हुए भाई दुनिया के नाल नहीं चलना है, की करिए दुनिया रखनी पैंदी है। ये जुमला गलत है। ईमानदार कभी अपनी जिंदगी में जुमले को इस्तेमाल ना करे। मसीह पर ईमान रखने वाला दुनिया की बात ना कहे। हम दुनिया के नहीं, हम दुनिया से अलग किए गए हैं, हम यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं, हम दुनिया के नहीं। बात के दुनिया में जाए, फिर बात के दुनिया में जाए। क्यों? बार बार पूरी बाइबल की जहां के हम शक्ल ना बनो, दुनिया जैसे ना हो जाओ। दुनिया की शक्ल बदलती जाती है, दुनिया ने उसे छोड़ दिया है। हम कौन हैं? कौन है? हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम कौन हैं? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा हो, हम कलीसिया हैं, हम चुनीदा हैं, हम बरगजीदा हैं, हम शाही कहनों का फिरका है, हम मुकद्दस कौम है और इन सब के मानी एक ही है, उसका मतलब है कलीसिया।
हालेलुया हालेलुया। हम कलीसिया हैं। हम कलीसिया का मतलब बुलाए हुए, कलीसिया का मतलब चुने हुए, कलीसिया का मतलब बरगजीदा, कलीसिया का मतलब अलग किए हुए। ये सब नैनी कलीसिया के हैं। एक ही जुमला कह दो, हम कलीसिया हैं। आसमान पर कौन जाएगा? कौन लेने के लिए आ रहा है? किसने तैयार कर लिया अपने आप को? कलीसिया ने। कलीसिया ने तैयार कर लिया। महीन कतानी कपड़े पहन लिए हैं। अब दुल्हा आने वाला है। वो आवाज देगा, वो ज़हर होगा, उड़ेंगे बादलों पर और उसके साथ बारात में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि दुल्हा कलीसिया को लेने आ रहा है। हालेलुया। जी पास्टर साहब जरा बोल रहे हैं। बस खत्म करें बस आखिरी आयत पढ़े 16 बार यूहन्ना की इंजील 16 बार 8 ऐसे से 14 आयत तक। और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया। मुझे तुमसे और बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। आमीन आमीन। आई बात को समझ में सुने। मैं शोर कर रहा था कि अपने आप को दुनिया ना क्या करो। एक है बड़ी मुश्किल है दुनिया मंगूदा बनना। ऐसे बल्कि मेरी शक्ल हो, ऐसे बल्कि मेरे बाल हो, ऐसे बल्कि मैं नजर रहा, ऐसे बल्कि मैं कपड़े बना। दुनिया के हम शक्ल ना बनो, अपनी शक्ल बदलो। मुकद्दसों की शक्ल में, कलीसिया की शक्ल में और दुनिया की शक्ल में फर्क है। तो एक छोटी जी गल कह दूं। थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था कि कल यहाँ भी देखना होता मोबाइल देने आए थे। एक बहन निकली पार्लर से, नौजवान बेटी थी, उसका बेटा था कोई 5-6 साल का, उसको सोफे पे बिठाया हुआ, वो अंदर पार्लर से बाहर आए। वो बच्चा तो रोना शुरू हो गया। बच्चा आगे कहता मैं तेरी माँ ना भाई उधर खड़ो गई ना तड़फे टप्पे वो की मेरी मामा मेरी। ओके बेटा मैं तेरी माँ। सारे हसन, पूरा स्टाफ हसे। उन्हें शोर पाया मेरी मामा मैनू दो। मेरी मामा अंदर गई, मेरी मामा कितने में? वो मामा बथेरा आके, क्योंकि उसने अपने चेहरे पे एक और चेहरा इस जहां के हम शक्ल अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदल देना। और सूरत कैसी बदलो? खुदा के जलाल पर। हमारी सूरत खुदा के जलाल पर है। खुदा ने सही नहीं बनाया, मैं अपना मुंह से इकरार चला चलिए। और सिर्फ लेडीज नहीं जेंट्स भी आजकल स्यापा है। दोनों तरफ यही प्रॉब्लम है। खुदा ने जो बनाया थी ना सही नहीं बनाया। खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल व शबीह पर बनाया। खुदा चाहता है मेरी शक्ल जैसे हो और मेरी खूबियां भी इनमें हो। हालेलुया। अच्छा आखिरी जो हमने आज पढ़ी है जरा दोबारा पढ़ लें। और वो आकर दुनिया को गुनाहगार और रास्तबाज और वो आकर दुनिया को गुनाहगार और रास्तबाजों को अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। दुनिया कसूरवार है, दुनिया गुनाह में पड़ी हुई है। अभी हमने पढ़ा है और आगे लिखा हुआ है, पढ़े गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाए। दुनिया यूसुफ पर ईमान नहीं लाए, मगर कलीसिया ईमान लाई है, इसलिए तो वो कलीसिया है। और आगे लिखा राष्ट्रवादी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। अब मैं कहाँ जाता हूँ? बाप के पास। यीशु ने ये बहुत बार कहा,
अपने आखिरी सफर में 3 बार मैंने पढ़ा, एक सफर में 3 बार था। मैं जाता हूँ, मुझे गैरों के हवाले किया जाएगा, वो मुझे सलीब पर चढ़ा देंगे, वो मेरे मुंह पर थूकेंगे, तमाचे मारेंगे। यही यीशु कह रहे हैं, अब मैं जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे, और अदालत के बारे में सुन लो, अदालत क्या है। फिर यीशु ने कहा कि अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरम ठहराया गया, क्योंकि मैं दुनिया में आया, मैंने देखा कि वो लोगों को गुनाह में उकसा रहा है, बल्कि उसने मुझ पर भी, यीशु ने कहा, बहुत ट्राई मारी। यीशु पर ट्राई मारी। यीशु जब खिदमत में आया, 40 दिन आजमाया गया, अब इसने पूरी ट्राई मारी। तो यीशु कह रहे हैं अब वो मुजरम ठहराया गया। तो अबलीस पहले क्या था? पहले वो मुल्ज़म था। मुल्ज़म और मुजरम में क्या फर्क होता है? सुने, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं इस बात को। मुल्ज़म कहते हैं जिस पर इल्जाम हो, मुजरम वो होता है जिस पर साबित हो जाए इसी ने कत्ल किया। तो यीशु ने कहा मैंने दुनिया में आके देख लिया, क्योंकि मैं क्या हूं? मैं खुदा हूं। यीशु ने कहा मैंने देख लिया। अब क्या हुआ? अब दुनिया का सरदार मुजरम ठहराया गया। दुनिया का जो सरदार है वो अबलीस है, और उसको हमारे यीशु ने क्या ठहरा दिया? मुजरम ठहरा दिया। और यीशु आसमान से इसे मुजरम ठहराने के लिए आया। हालेलुया। और आगे लिखा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना जरूर है, मगर अब वक्त नहीं। मेरे बाद मैं अपने पाक रूह को भेजूंगा, बाकी बातें तुम्हें वो सिखाएगा। मगर अब क्या हुआ? मुजरम ठहराया गया। यीशु ने जब सलीब पर अपनी जान दी तो हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक हट गया। खुदा और इंसान में जुदाई खत्म हो गई। इस काम के लिए यीशु दुनिया में आया, और यीशु इसलिए आया कि हम निजात पाए और कसरत की निजात पाए, हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। ये जिंदगी बड़ी छोटी सी है। 50 साल, 60 साल, 70 साल क्वार्टर पहुंचने गए थे, 40 के कहें खत्म, 50 थे बहुत कट, औसत जिंदगी थोड़ी सी रह गई। और अभी बड़े कल की खबर नहीं, 100 साल का सामान इकट्ठा पे करने ऐसी कर लीजिए, ऐसी बना लीजिए, उसे खेती कर ले, और भी चोरी कर ले, तो बेईमानी करके ना कह कर लेने, इतों चोरी करके है कर लेने, कल काम आएगा, पता ही नहीं कल देखनी है कि नहीं। हम पर यही इल्जाम है, ये पागल है, इनको पैसा नहीं पसंद, ये पागल है, इनको दुनिया की इज्जत नहीं पसंद, इनको दुनिया की चीजें नहीं पसंद। हम पागल ही नहीं। अभी बेटा क्या कह रहा था? कीचड़ हो मैं बैठूंगा, कचरे पर बैठूंगा, क्योंकि जब यीशु आएगा वो हमें तख्त पर बैठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बस समझ आई मेरी बात की, या मैं इसे मैं चूक करता है? किस किस को समझ आई है? हालेलुया। कोई एक खड़ा होकर, बहनों में से बताया आज मैसेज क्या था, आपने क्या सीखा? कोई बहन खड़ी होकर, कोई बेटी खड़ी होकर, कोई भी बड़े खड़े होकर बताए, जरूर बताए क्या सीखा है। खड़े हो जाए, कोई बात नहीं, कोई जुर्माना नहीं लगेगा। जी जी, हालेलुया। और जी, और क्या सीखा आपने? चलो भाई बोलते जाओ। आसमान पे नहीं बल्कि आसमानों से भी। हालेलुया। और जी, और क्या सीखा? दुनिया की हम शक्ल नहीं बदला, दुनिया से अलग रहते हैं। आमीन। आज का मजमून क्या था? आज का मजमून था अबलीस को कब जमीन पर गिराया गया। आज का मजमून है यीशु क्यों दुनिया में आया। इसी काम के लिए यीशु दुनिया में आया। भाइयों में से कोई जरा बता दे। भले मैंने जो बोला वही बोलना है, आपने क्या कहा, मगर ये झिझक खत्म हो, बोलना सीखे। बोले कोई खुदा का अदली मंसूबा बच के लिए मिलने के लिए बहुत है। ये था खुदा का अदली मंसूबा, ये इसको खुदा का अदली इरादा भी कहते हैं, अदली मंसूबा भी कहते हैं। और अदली मंसूबा, अदली इरादा यीशु मसीह है।
जी भाई और कोई बोले बोले कोई ना कोई बोले शौकत बोलो क्या सीखा भाई वो तो लोगों के नाल तो बढ़िया पे करना घंटे मुफासे करना ये तो तो कोई दाता नहीं। आज शौकत की बारी हाँ बोलो क्या सीखा नहीं क्या सीखा बहुत कुछ सीखा हमने आज। बाकी ये कि खुदा का अज़ली मंसूबे की पूरी तरतीब को हमने बड़े अच्छे तरीके से सीखा है। खुदा के अज़ली मंसूबे की तरतीब पूरा तरीका सीखा है। अज़ली मंसूबा क्या है? हालेलुया। भाई फिर कुछ कहना चाह रहे हैं बोल दे कुछ बोल दे क्या सीखा है? खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो लोग नहीं जानते वो आज अच्छे तरीके से सीख गए हैं कि हमें पता चल गया है कि खुदावंद यीशु मसीह जमीन पे क्यों आया। हालेलुया। यीशु दुनिया में आया क्यों? यही आज हमने सीखा। आए अपने सरों को झुकाना थे बंद करें। जी बारी साहब